Hello everyone. Welcome in Power Plant Engineering as an elective of 5th semester Mechanical Engineering. Unit 4 Waste Heat Recovery Unit Cogeneration and Trigeneration. Topic 1 Waste Heat Recovery in Thermal Power Plant. Lecture number 17 prepared by Mrs. Amruta Mundle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Content of this lecture as waste heat recovery in thermal power plants, need, opportunity and present practices. As that learning outcomes of this lecture. After completion of this lecture, you are able to identify the components of waste heat recovery unit. Program outcomes. After that, you are able to identify the following POs from PO1 to PO10 and PSO1 to PSO3 will be mapped. So the time is to discuss about the introduction of waste heat recovery unit. In mind, what is waste heat recovery unit? A valuable alternative to improving overall energy efficiency is to capture and reuse the lost or waste heat that is intrinsic to all industrial manufacturing. तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि वेस्ट हीट मतलब जो भी हमारे पावर प्लांट से हीट निकलने वाली है जिसको हमने यूटिलाइज नहीं किया है उस वेस्ट हीट को यानी जो लॉस ऑफ हीट है उसको रिकवर करके कुछ थिंग्स को डिजाइन करके उसकी एनर्जी यूटिलाइज करेंगे फॉर सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग पर्पज दैट इज कॉल्ड एज ए वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट्स. Capture and reuse waste heat is an emission-free substitute for costly purchase fuels or electricity. तो ये जो पावर प्लांट से निकलने वाली जो हीट है जो हम रिसर्कुलेट करेंगे रिसाइकल करेंगे फॉर सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए तो इसकी कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी जो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगती है वो मिनिमाइज हो सकती है. In some cases, such as industrial furnaces, efficiency improvements resulting from waste heat recovery can improve energy efficiency by 10% to as much as 50%. तो ये जो वेस्ट हीट होने वाली जो एनर्जी है जिसको हम रिसाइकल करेंगे और उस प्लांट की जो 10% एफिशिएंसी है उसको हम बढ़ा सकते हैं अप टू 50%. So waste heat recovery unit as a waste heat recovery unit MHRU is an energy recovery heat exchanger. ये जो waste heat recovery unit WHRU जो है उसे हम energy recovery heat exchanger भी बोल सकते हैं. That transfers heat from process outputs at high temperature to another part of the process for some purpose, usually increase efficiency. The WHRU is a tool involved in cogeneration. तो WHRU means waste heat recovery unit ये tool है cogeneration process का. Waste heat may be extracted from sources such as hot flue gases from a diesel generator, steam from cooling towers or even wastewater from cooling processes such as in steel cooling. तो ये जो वेस्ट हीट के वे अलग अलग ऑप्शंस है जो वेस्ट हीट रिकवर कर सकते हैं वो कर सकते हैं फ्लू गैसेस फ्रॉम डीजल जनरेटर से, देन स्टीम कलेक्ट कर सकते हैं कूलिंग टावर से, वेस्ट वाटर कलेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्पज ऑफ स्टील कूलिंग. सो दैट्स ऑल अबाउट द वेस्ट हीट रिकवरी. Existing technology can be further improved to maximize heat recovery, expand application constraints and improve economic feasibility. तो अभी हम देखेंगे कि उसके लिए existing technology improvement के लिए
कौन सी है मैक्सिमम हीट रिकवर करने के लिए, और उसका इंप्रूवमेंट इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कंस्ट्रेंट्स, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एज यू नो दैट सोर्स ऑफ वेस्ट हीट, तो वेस्ट हीट कहां से आती है? कंबशन, एग्जॉस्ट, प्रोसेस एग्जॉस्ट, हॉट गैसेस फ्रॉम ड्राई ओवन्स एंड कूलिंग टावर वाटर। तो सोर्सेस ऑफ वेस्ट हीट जो है वो यहाँ पे हमने ब्लॉक में मेंशन की है। कंबशन एग्जॉस्ट से जो गैसेस निकलेगी, हीट निकलेगी, दैट इज द सोर्स ऑफ वेस्ट हीट। देन प्रोसेस एग्जॉस्ट, कोई भी प्रोसेस का जो एग्जॉस्ट होता है, एक्सपांशन जो होता है, वहां से जो हीट लॉस होगी उसे हम प्रोसेस बोलेंगे, प्रोसेस एग्जॉस्ट। देन हॉट गैसेस फ्रॉम ड्राइंग ओवन्स, ड्राइंग ओवन्स के अंदर जो हॉट गैसेस एग्जॉस्ट होगी उसे भी हम सोर्सेस ऑफ वेस्ट हीट बोल सकते हैं। देन कूलिंग टावर वाटर, कूलिंग टावर से जो वाटर सर्कुलेट होता है, स्टीम सर्कुलेट होता है, दैट इज अगेन वन ऑफ द सोर्स ऑफ वेस्ट हीट। इस वेस्ट हीट का हम क्या करेंगे? सोर्सेस का रिकवरी टेक्नोलॉजी से रिकवर करेंगे, और जिसके नेम से रीजनरेटर, रिकुपुलेटर, इकोनोमाइजर, वेस्ट हीट बॉयलर, थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हम सिस्टम के अंदर यूज करके रिकवरी टेक्नोलॉजी से जो वेस्ट हीट यहाँ पे जा रही थी उसको रिकवर कर सकते हैं, जिसके वजह से हमें बेनिफिट होगा, और उसका एंड यूजर होगा एंड यूज फॉर रिकवरी हीट एज ए प्री हीटिंग बॉयलर, फीड वाटर, रॉ मटेरियल, कंबशन एयर। तो जो भी यहाँ से हीट लॉस्ट होने वाली है वेस्ट हीट, उसे हम इन कंपोनेंट के थ्रू रिकवर करेंगे, और सिस्टम में इस सिस्टम के इस एलिमेंट के थ्रू उसको वापस से सिस्टम में या डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। दैट इज ए प्री हीटिंग प्रोसेस इन बॉइलिंग फीड वाटर, रॉ मटेरियल, कंबशन एयर। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, domestic hot water, that is the end user of waste heat recovery plant or unit. Now we discuss about the waste heat sources. अभी जो हमने जो एक ब्लॉक डायग्राम देखी उसके अंदर ये सारे चीजें हमने देखी है। वेस्ट हीट सोर्सेज क्या होते हैं, वेस्ट हीट यूजेस क्या होता है, और उसका रिकवरी यूनिट कौन से होते हैं। तो उसी के नाम यहाँ पे दिए हैं। वेस्ट हीट सोर्सेज, दैट्स ए कंबशन एग्जॉस्ट। कंबशन एग्जॉस्ट के अंदर आएगा ग्लास मेल्टिंग फर्नेस, सीमेंट क्लीन, फ्यूम इंसिनरेशन, बॉयलर्स। ये कंबशन एग्जॉस्ट से हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ गैसेस, स्टील इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, एल्यूमिनियम रिवर्बरेटर्स फर्नेस, कूलिंग वाटर फ्रॉम फर्नेसेस, एयर कंप्रेशर, internal combustion engine, then conductive, convective and radiative losses from equipment. That is all about the sources of waste heat from the system. Then uses of waste heat as a combustion, air preheating, boiler feed water preheating, load preheating, steam generation, space heating and water preheating. All are the uses of waste heat. Now we discuss about the factors affecting waste heat recovery feasibility. That's as a heat quantity. हीट की कितनी क्वांटिटी लॉस हो रही है उसको रिकवर करने के लिए जो फिजिबिलिटी है वो मायने करते हैं ये फैक्टर्स। अगर आपकी हीट जो लॉस हो रही है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे लॉस है तो उसको रिकवर करने में जो इक्विपमेंट हम यूज करेंगे उसे कोई भी फायदा नहीं होगा। पर जहां से हमारी हीट लॉस हो रही है और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको हमें रिकवर करना है तो दैट इज द बेनिफिशियल एंड फिजिबल फॉर द वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। Also the quantity of heat required, then the temperature of heat required to effective and feasibility of waste heat recovery. Then composition, वहां से एग्जॉस्ट से जो कंपोजिशन डेवलप होंगे उस कंपोजिशन से भी डिपेंड करता है आप उसको रिकवर करें या ना करें। Then the minimum allowed temperature,
आपको सिस्टम में कितना मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ये भी आपके वेस्ट हीट रिकवरी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर फिजिबिलिटी, operating schedules, availability and other logistics. All 5 points are important to cover in factors affecting waste heat recovery feasibility. Whether the heat is feasible to cover and use in different purposes or not. Then the waste heat recovery with रैंकिंग साइकिल, ऑल अबाउट नो अबाउट द रैंकिंग साइकिल। तो रैंकिंग साइकिल आपको पता है कि वहां पे इवेपोरेटर होता है, टरबाइन होता है, टरबाइन से जनरेटर होता है, जनरेटर से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, देन जो टरबाइन से लॉसेस ऑफ हीट होती है उसको हम करेंगे स्टीम को कंडेंस, और कंडेंस से फिर से इवेपोरेटिव प्रोसेस में भेजेंगे। इन प्रोसेस के बीच में जो भी हीट लॉस होगी इन बिटवीन ऑफ इवेपोरेटर एंड इन बिटवीन ऑफ कंडेंसर, जब हम इवेपोरेटर की बात करते हैं तो इवेपोरेटर से हमें स्टीम फॉर्म मिलता है और स्टीम हम टरबाइन को सर्कुलेट करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर जो भी हीट रिकवर हो रही है उसको हम वेस्ट हीट फ्रॉम प्रोसेस करके फिर से रिसर्कुलेट कर सकते हैं इन इवेपोरेटर, जिसके वजह से इवेपोरेटर और बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। वैसे ही कंडेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, टरबाइन से जो स्टीम पास हो रही है, वेस्ट जा रही है, उसको रिकवर करने के लिए उसको हम फेस ट्रांसफर करते हैं और फेस ट्रांसफर करके फिर से इवेपोरेटर में सेंड करते हैं, जिससे हमारी जो वेस्ट स्टीम थी उसको हम रिसर्कुलेट कर सकते हैं और इवेपोरेटर का टेम्परेचर और हीट प्रोसेस कम लगे। तो इस कंडेंसर के बीच में जो एक्टिविटी होगी तो आपका हाई स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा और वाटर में कन्वर्ट करते हुए और साथ में टेम्परेचर भी लॉस करेगा। जो सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर लॉस होगा वो हम कंडेंसर से डिफरेंट सिस्टम के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करके वाटर को हीट करने का काम कर सकते हैं एज ए इन कंडेंसर प्रोसेस, दैट इज ए वेस्ट हीट रिकवरी विथ रैंकिंग साइकिल। तो इसी तरीके से जहां पर भी हमें हीट को ट्रांसफर करना पड़ रहा है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, उस बिटवीन में उनके बीच में अगर हमने ऐसा हीट प्रोसेसर लगा लिया और उसको हमने डिफरेंट पर्पस के लिए हीट को यूटिलाइज किया, दैट इज ए वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट और प्लांट। Waste heat recovery technology. So first is a recuperator. Recover exhaust gas waste heat in medium to high temperature application such as soaking or annealing ovens, melting furnaces, after burners. तो रिक्यूपरेटर्स के वजह से भी हम हीट को एग्जॉस्ट गैस जो वेस्ट हीट जा रही है उसको रिकवर कर सकते हैं and in high temperature and their application as a soaking or annealing ovens को annealing या soaking करने का काम ये रिक्यूपरेटर के हीट के वजह से हम कर सकते हैं। also is a melting furnaces and after burners. it is based on radiation, convection and combinations. तो ये रिक्यूपरेटर डिपेंड करता है वर्किंग प्रोसेस पे, हीट ट्रांसमिशन रेट इन रेडिएशन एंड convection process and combination of the both. That is was one of the technology of waste heat recovery plant or unit. Second is a regenerator. तो आपको पता है कि अगर एक जनरेटर के बाद दूसरा जनरेटर हमने यूज किया तो वही हमारी एनर्जी जो लॉस हो रही है दो चीजों के बीच में उसको हम रिकवर कर सकते हैं। One of the example of regenerator as a gas turbine power plant. तो हम गैस टरबाइन पावर प्लांट यूनिट 3 के अंदर आपने पढ़े होंगे कि जहां पे गैस टरबाइन पावर प्लांट में लोग इसमें फर्स्ट टरबाइन रोटेट होती है वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। उसके साथ साथ अगर जहां पे जो गैस हमारी बर्निंग गैसेस रिजॉल्ट है उसको हम सेकेंड टरबाइन से भी पास कर सकते हैं और जिसको हम बोलते हैं एलपी। तो एचपी लेवल पे भी हमें पावर जनरेशन मिलेगा हाई प्रेशर एंड एलपी टरबाइन पे भी हमें पावर जनरेशन मिलेगा एट ए लो कॉस्ट। तो जो सेकेंड स्टेज में आपको पावर जनरेशन मिल रहा है उससे आप कंप्रेसर चला सकते हैं और जो फर्स्ट लेवल पे आपको
पावर जनरेशन मिल रहा है उसको हम पावर जनरेशन यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर सर्टन पर्पस। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेटर इन गैस टरबाइन पावर प्लांट, जो आपने यूनिट 3 के अंदर गैस टरबाइन पावर प्लांट के अंदर मेथड्स टू इंप्रूव गैस टरबाइन इफिशिएंसी पढ़ा था। दैट इज ऑफ द रीजनरेटर। चैलेंजेस टू रिकवरिंग लो टेम्परेचर वेस्ट हीट, तो सम चैलेंजेस भी है लो टेम्परेचर वेस्ट हीट को रिकवर करने के लिए। उसके बीच में आता है कोरोजन ऑफ हीट एक्सचेंजर सरफेस। तो आप लो टेम्परेचर हीट गेन करना चाहते हैं तो वहां पे क्या हो सकता है, कोरोजन हो सकता है इन बिटवीन ऑफ हीट एक्सचेंजर सरफेस। लार्ज हीट एक्सचेंजर सरफेसेस रिक्वायर फॉर हीट ट्रांसफर, तो लो हीट अगर वेस्ट हीट रिकवर करना है तो आपको लार्ज टाइप का हीट एक्सचेंजर सरफेस रिक्वायर्ड होगा फॉर हीट ट्रांसफर। देन फाइंडिंग ए यूज फॉर लो टेम्परेचर हीट, साथ में आपको उसका यूटिलाइजेशन भी फाइंड करना पड़ेगा कि लो टेम्परेचर वेस्ट हीट को रिकवर करके आप कौन सा पर्पस, कौन सा एप्लीकेशन सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द चैलेंजेस टू रिकवर लो टेम्परेचर। Direct benefits of waste heat recovery plant is a recovery of waste heat has a direct effect on the efficiency of the process. This is reflected by reduction in the utility consumption and cost and process cost. Indirect benefits of waste heat recovery unit as a reduction in pollution, reduction in equipment sizes and reduction in auxiliary energy. That's all are the indirect benefits of waste heat recovery unit. Now the time is to discuss about the unit outcomes achieved. By this lecture you are able to explain the need of waste heat recovery of the given thermal power plant and different power plants. So the summary of today's lecture, as you discuss waste heat recovery in thermal power plant by a ranking cycle, its need, opportunity, present practice and its benefits. So the program outcomes achieved by this lecture from PO1 to PO10, in between PO7 is not mapped because of ethics is not satisfied by this lecture. Also there is no use of modern software for this purpose, so the PSO1 will not be mapped and PSO2 and PSO3 is mapped. Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 17. All of you note the questions of this assignment and solve in copy and submit as a assignment number 17 in Genuino site. Explain need of waste heat recovery unit. Explain waste heat recovery methods. What is waste heat recovery plant? Write advantages of waste heat plant. All are the note all the questions of this assignment and solve in your regular copy and submit as a assignment number 17. If you have any difficulty and unable to solve this assignment question, then watch this video again, refer the notes. If in certain level the problem will not solve by watching this video again, then contact to subject teacher. Thank you. Happy learning. Keep online. Stay safe. Stay